So guys, I have give this lecture on continuous systems. We'll be studying continuous systems. Actually, ये हमारे syllabus में है what is continuous system. तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा. और जो इसकी mathematical theory है, that is beyond our scope, so we won't delve into that. But what we will do is that we will just give some introductory lecture about continuous systems, so that you will have some idea as to what it is. It is in the syllabus. तो basically continuous system होता है. So continuous system होता है. So it has to be differentiated from a discrete system. So if someone tells you what is a continuous system and what is a discrete system, there is one particular difference about continuous system and a discrete system. So discrete system हो गया जो हम आज तक पढ़ते थे. For example, जब हम spring mass system पढ़ते थे, so that was a discrete system. उसमें एक mass element होता था and then there was a spring और उसमें damper भी अगर होगा. So what that means is that कि जो discrete system होता है उसमें external stiffness होती है. So in a way जो mass हमारा है जो उसमें move होता है. Wait a second, they are making noise. So a discrete system is one in which there is an external stiffness involved. For example, अगर आपके पास spring mass system होगा ना, जो हम पढ़ते थे या 2 degree of freedom system भी, वो discrete है. For example, इसमें देखो, इसमें जो spring मैंने दिखाया है, this is the stiffness that जो stiffness provide करता है इस mass को, मतलब restoring force है, provide करता है to sustain the vibrations once it is disturbed. But जो mass है हमारा अपना, mass में कोई मतलब movement नहीं होता है, internal movement. जो इसके internal particles है, they all move together. So they have no independent motion as well. For example, जो m है, it will move x right and then x to left, and then will start vibrating. But as such, जो mass का है ना, ये जो mass में points है, वो move नहीं होंगे. We say this is a discrete system. जो हम पढ़ रहे थे, this is a discrete system. इसी तरह अगर मैं इसमें एक spring और लगा दूंगा और एक mass लगा दूंगा, then it will become a 2 degree of freedom system, but it will still be a discrete system. So अब फर्क क्या है? तो ये हमने पढ़ लिया इसकी थ्योरी जो है डिस्क्रीट सिस्टम की, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. बट अब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हम बोलते हैं एक. फॉर एग्जांपल आपको इस तरह समझ आएगा, अगर आपके पास एक बीम है, इन फिगर 2 मैंने बीम दिखा दी है, इसमें देयर इज अ बीम, इसमें कोई स्प्रिंग उपरिंग नहीं लगाया हुआ है. दिस इज जस्ट अ बीम दैट्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, मतलब ये हमने दोनों तरफ से बंद कर रखी हुई है. फॉर एग्जांपल बाय embedding it into the wall on both sides, ठीक है ना. So let's assume कि ऊपर से this beam is elastic in a sense कि इसका कंक्रीट की नहीं है, कंक्रीट की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है. assume कि इसमें हमने ऊपर से एक mass डाल दिया from a height h. So once we dropped it onto this beam, so what we will realize कि जो beam है it will bend हो जाएगी and then it will start vibrating. So as such beam में vibrations आ जाएंगी. But vibrations आएंगी, इसके जो particles है they will all start vibrating. Obviously they will be in sync, और इसको हम बोलेंगे they will be in phase depending upon which mood will be vibrated. तो हम ये कह रहे हैं कि हम continuous system उसको कहते हैं जिसमें जो particles है एक system के, वो सब vibrations में आते हैं. इसको हम बोलते हैं continuous system. So इनकी vibrations जो होती है they are a bit complex. उनको mathematical equation जो involved है, that is the governing differential equation is a bit involved. उसको हम इसको वैसे solve नहीं करेंगे. So but many of the aspects of discrete system are actually applicable to this continuous system. For example, to a beam that is vibrating. तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे continuous system. किसको? जिसमें सारे particles इसमें motion में आते हैं once the vibration start.
तो इसी तरह एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्ट्रिंग होती ना, आप उसमें वेव्स प्रोड्यूस करोगे। स्ट्रिंग, आई डोंट नो, मैंने दिखाया यहाँ पे स्ट्रिंग देखो ना। सपोज दिस इज स्ट्रिंग जो अटैच्ड है, अगर आप इसको प्लग करोगे ना बाय हैंड और बाय सम एक्सटर्नल फोर्सिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल आप मोटर दोगे जैसे हम लैब में देते हैं मोटर, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। सो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दिस इज आल्सो a continuous system। इसके लिए एक्चुअली जो गवर्निंग मैथमेटिकल थ्योरी है दैट्स क्वाइट इन्वॉल्व, तो हम नहीं जाएंगे, बट आई विल टेल सम ऑफ द एस्पेक्ट्स इसके। तो व्हाट वी डू, जो हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम होता है उसको हम मॉडल कैसे करते हैं। So we apply a governing differential equation. In this case, that will be a partial differential equation. मैं अभी कह रहा हूँ कि उसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम उसको सिर्फ theoretical touch देंगे, and then we will see what happens with the continuous system. So हम एक्चुअली इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लैब में, जो हमारा continuous system है वहाँ पे है, एक्चुअली बीम को एक्साइट करेंगे। बट जो अर्लियर हमने पढ़ा ना डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए, मच ऑफ द थ्योरी इज आल्सो एप्लीकेबल टू दिस। व्हाट दिस मीन्स कि जो एक अब आपके पास सपोज बीम है, आपने उसको एक्साइट किया फॉर एग्जांपल आपने उसको एक्साइट किया बाय रिलीजिंग ए मास m फ्रॉम सम हाइट एंड ड्रॉपिंग इट ऑन द बीम। तो ये एक पर्टिकुलर मूड में एक्साइट होती है। उस मूड को हम बोलते हैं, जैसे उसमें हम होता था ना डिस्क्रीट सिस्टम में, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में होता था फंडामेंटल मूड, तो उसके साथ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अटैच होती है, उसको भी कहते हैं इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So these things are clear once the mathematical aspect is touched, but I'm saying कि जो discrete में हमारी fundamental frequency होती है, तो that is true with a continuous system as well. But obviously see इसमें particles infinite होते हैं। For example अगर आपने देखेगा P1, P2, P3, P4, Pn, तो what happens कि जो infinite particles होते हैं, in this case each particle vibrates. So it is expected कि जो इसकी fundamental frequencies होंगी, they will be as many as there are particles। जैसे अगर आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसमें आप मास को एक पार्टिकल मानते हो, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह जब आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेते हो, यानी जिसमें 2 स्प्रिंग्स और 2 मासेस होते हैं, उसमें 2 मासेस होते हैं, तो उसकी 2 फ्रीक्वेंसीज होती है। अब इसमें कितने मासेस इन्वॉल्व हुए? इनफाइनाइट। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो इसकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, तो वो भी इनफाइनाइट ही होंगी। एंड दैट्स ट्रू, वो इनफाइनाइट होती है इसकी कंटिन्यूअस सिस्टम की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है, वो इनफाइनाइट होती है। बट व्हाट हैपेंस, जो हमारा ये ना कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, यानी जो बीम होता है, उसमें पहली 4, मतलब अगर पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल होगी 10 हर्ट्ज, दूसरी होगी 20, तीसरी होगी 30, तो यही 2-3 जो पहली फ्रीक्वेंसीज होती है वो डोमिनेंट होते हैं। And then the response of the system can be expressed as the superposition of these dominant modes, first 4 modes. So what this means कि अगर आपको एक arbitrary एक्साइटेशन के लिए और एक arbitrary initial condition के लिए आपको इसका response ढूंढना होगा, you will just present that as a superposition of first 4 modes, even though इसकी infinite modes होते हैं, but पहली 4 काफी होते हैं इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। So what happens then कि continuous system में रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली अगर आप देखोगे जो आपकी बीम है ना, इसमें इनहेरेंट इलास्टिसिटी होती है, बेंडिंग इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल इसमें इसकी जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो रोल प्ले करेगी इसमें वाइब्रेशंस में। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज डिफाइंड बाय द ई मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई एंड आई, होता है ना ई आई, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा ना मैथमेटिकल सॉल्यूशन, बट दैट प्लेज अ रोल, मतलब वही इसको रेस्टोरिंग फोर्स देगा, इलास्टिसिटी वही देगा। or we can say stiffness will be provided by EI of the beam, and there will be first 4 fundamental modes that will be dominant, and they will actually define the motion of this continuous system for any vibration. तो अगर आप अब एक काम करोगे, सपोज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज और आप इसको एक्सटर्नली हार्मोनिक एक्साइटर लगा दोगे 10 हर्ट्ज वाला, तो क्या होगा, ये उस फ्रीक्वेंसी पे ये रिजोनेंस दिखाएगा, मतलब उस वक्त उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो यू विल सी कि एक अप्रिशिएबल चेंज आती है इसमें।
over that frequency. जो इसकी सपोज पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज और आपने एक्सटर्नल इसमें मोटर लगा दिया 10 हर्ट्ज का, मतलब 10 हर्ट्ज पे वो मोटर भी चलता है। इसका मतलब हो गया आपने हार्मोनिक फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई किया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है 10 हर्ट्ज, एंड देन इट विल स्टार्ट, इट विल शो रेजोनेंस। ये था बंद गया संपादन बंद। सो व्हाट वी डू देन, इसको हम बोलते हैं उस वक्त फिर ये रेजोनेंस दिखा देगा। इसी तरह फिर अगर आप इसको दूसरी फ्रीक्वेंसी पे लाओगे जहां पे इसका दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो वहां पे भी ये resonance दिखाएगा। So these concepts that we have studied in discrete system apply to the continuous system as well. So these are some of the aspects of the continuous system which we have to know because this is in our syllabus. So rest जो मैंने इसमें लिखा है, you can read it and you will understand what I am saying. So I hope you understand some basic difference or basic fundamentals about a continuous system. मैंने लिखा है सारा जो मैंने बताया है यहाँ से. So I hope you will see it and you will find what is involved in it. So next time I will ask you for an assignment. I will ask you to find the Rayleigh-Ritz frequency of a shaft, so that I will provide today. So I hope you'll study this and understand. Thanks.